In last lecture that we discuss the program for addition of three numbers, and we are supposed to write the addition of a five numbers program, right? So before switch to that part, we will see that the addition of the three numbers in that particular program, we have to take the three numbers from the user. That means we have to show the some message that so that user can enter the data and provide to the program, and so that the program can calculate it and gives the output in the end, right? So starting with the hash include stdio.h, that means including the header file into the program, so that the necessary packages or necessary methods functions, that we can say that the printf functions, scanf functions, that their definition will be included through that stdio.h file into your program. And later on, whenever it is required to call that particular function, it will call the definition and it will use it as per their appropriate utility, right? Then we have to use the void main. That main class should be there, because without main class your program is incomplete, and without main class we can't declare the variables, execute the functions methods. So for that we require to write the main class after the header file. Then in that void main, that void is empty, main is the function or the method we can call. Then we will declare the few variables of a type, data type integer, a, b, c and sum, right? And we use the semicolon over there, because we ensure that the declaration of a variable should be end after the variable sum. तो जैसे ही sum ये variable हम declare करते हैं, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे जो भी आप लिख रहे हो एंड द प्रीवियस लाइन कंटेंट, that should not be mixed with each other. For that their separation we use the semicolons, right? A single semicolon that we will use. Then printf, what we want to print, we just have to print the one message like a hello. जैसे हमने hello इसके पहले print किया था, similarly we are going to print the message that enter the three numbers, right? Now when user have to enter the three numbers, we just have to provide that message so that user can acknowledge that what we have to do. Just like that, कि अगर आपको किसी पेज में रजिस्ट्रेशन करना है तो कुछ फील्ड्स दी गई रहती है, वी हैव टू एंटर द डेटा एंड देन वी हैव टू डू द सबमिट, एंटर द सबमिट बटन. वंस वी डू द सबमिट, वहाँ पे आपका एक पॉपअप मैसेज आता है कि योर रजिस्ट्रेशन इज डन, यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड, soon you will get the email, or on your mobile phone you will get the message. That is what a response, जो हमने input data दिया है उस particular फॉर्म में या फिर जहाँ पे भी, तो उसका आपको रिस्पॉन्स मिलता है. तो सिमिलरली हियर वी गेट द रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ अ printf statement, enter the three numbers. Then after that user will enter the three numbers. Now, when the user will enter the three numbers, the system should recognize that the numbers with the help of the access specifier, and that number should be read by or with the help of the scanf function. अब scanf function क्या करेगा, उन numbers को read करेगा. So for that the format is, you have to write down the access specifier. अब access specifier कितने लगेंगे, the input taken from a user, that much of a access specifier requires. For an individual variable, individual access specifier is required. No matter that the data which is provided by the user may be character, integer, float, string, ठीक है? As per that we have to change that access specifier. But when user enters the data, it is not under the control of a programmer. User तो कोई भी data enter कर सकता है. मोबाइल नंबर अगर किसी को एंटर करना है एक टेक्स्ट बॉक्स में, वो 10 डिजिट का भी कर सकता है, 8 का भी कर सकता है, 11 का भी कर सकता है. बट वी हैव टू वैलिडेट दैट पर्टिकुलर नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए.
अगर उससे ज़्यादा या कम होता है देन इन दैट केस इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। वो आपको वहाँ पे रेड कलर का कुछ तो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देता है कि दिस मोबाइल नंबर इज़ इनकरेक्ट, राइट। और सम इफ़ यू आर यूजिंग द ईमेल आईडी एज एन अ फील्ड, सो आप अगर भूल गए कि एट द रेट उसमें लिखना भूल गए ईमेल आईडी में, ठीक है, @gmail.com रहता है, yahoo.com रहता है, hotmail.com रहता है, rediffmail.com रहता है। अगर आप एट द रेट लिखना भूल गए, again that email id, that checkbox will check it whether it is a proper syntax of a mail id or not. If it is not, if there is a at the rate missing, in that case it will not accept it, it will show the red error, right। जैसे हमने अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए थे, शुरुआत में स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल किए थे, तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लॉगिन करना चाहते हैं बट क्रेडेंशियल गलत होने की वजह से कुछ डेटा हमने जो गलत दिया है उसकी वजह से वो लॉगिन नहीं होता है या फिर फॉर्म फिल नहीं होता है, राइट। सो दैट देयर प्रोग्राम विल नॉट एक्सेप्ट द पर्टिकुलर डेटा। तो यहाँ पे भी वही है कि आप परसेंट डी यूज़ कर रहे हो 3 times to read the 3 numbers from the user, right। Now a is integer type, suppose b is float type and c is character type, in that case we have to change the access specifier। पहला a जो है वो इंटीजर का है तो %d आएगा, दूसरा फ्लोट है तो %f आएगा, तीसरा c जो है वेरिएबल दैट मे बी द कैरेक्टर, इन दैट केस इट विल बी %c of, if there is a string then %s, right। So as per the data given or data required for the execution of a program, so access specifier changes. Later on, when we're talking about the ampersand a, ampersand b, ampersand c, these are nothing but the address of a, address of b and address of c, right। So if you are thinking about the memory allocated to the variable a, variable b, variable c, so that memory should known to the system अलोकेट कर, प्रोसेसर अलोकेट कर देगा, बट प्रोग्राम को आपको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर जगहों पे, जगह कोई भी रह सकती है यानी मेमोरी लोकेशन वैरी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर, बट देयर शुड बी द सम प्लेस वेयर द कैरेक्टर और वेयर द a is allocated and that space is given, just like that you have a section a, right। Now we are performing the online classes, but when we have offline classes your section a is having a physical classroom, वहाँ पे डेस्क, बेंचेस, प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड जो भी है, फैंस एंड लाइट्स, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, राइट। अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, वी जस्ट रिक्वायर द सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर पार्ट्स, बट इन द क्लासरूम वी रिक्वायर दिस पार्ट्स, that means desks, benches, slide, fan, windows, then the dais, podium, all these things that we require, right। So that classroom is your location। आपके कॉलेज में आपकी जो लोकेशन है सेक्शन ए की, दैट इज नथिंग बट दैट क्लासरूम। सी बिल्डिंग है हमारी, C204, 205, 206 जो भी होंगी आपकी क्लासरूम, सो दैट इज नथिंग बट द एक्चुअल एड्रेस वेयर वी यू कैन गो एंड टेक अ वी कैन गो एंड अटेंड अ लेक्चर when there is a offline, ठीक है। मे बी for this same it will happen or not, we don't know because of the pandemic, but if it is offline then that will be the your memory location, right। So here in case of a ampersand a, ampersand b, ampersand c, all these variables having their locations, right। Then in next line, that is 7th number line, sum equal to a plus b plus c. Now in case of a, b, c, these all are the integer variables and we have to add it, and the collected addition that will be stored into the variable sum. Now whether that sum is actually carrying the addition or not, that we have to check, for that we use the printf statement which will display that particular addition। अगर हुई है तो दिखेगा, नहीं हुई तो नहीं दिखेगा। We use the double quotes, then ampersand n, addition of the 3 numbers equal to %d। Now again we are using the access specifier. Why? Because the number
एडेड नंबर जो भी होगा, तीनों का जो भी आउटपुट निकलेगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द सम, एंड दैट सम इज डिक्लेयर्ड एज एन इंटीजर। उसका जो डेटा टाइप है सम का, वो इंटीजर है। और जब भी आपको इंटीजर नंबर एक्सेस करना हो या फिर रीड करना हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं। जो स्टोर हुआ है सम में नंबर, दैट वी हाउ टू एक्सेस इट, मीन्स उसको आप रिट्राइव करना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो सिस्टम से, क्योंकि वो आउटपुट है। और जब आप स्कैनएफ के थ्रू नंबर्स को एंटर कर रहे थे सिस्टम में बाय द विद द हेल्प ऑफ अ यूजर वो एंटर करता था और वो आप सिस्टम को देते थे, राइट। सो इन दैट केस अगेन यू हैव टू यूज द एक्सेस स्पेसिफायर, बिकॉज सम ये इंटीजर डेटा टाइप का है, तो वहाँ पे %d आएगा रिट्राइव करते टाइम में और इंसर्ट करते टाइम, दोनों टाइम, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों टाइम पे, ठीक है। सो देयर फॉर्मेट इज, in case of double quotes, addition of the three numbers equal to %d, then comma sum, right. Up till now, any confusion, any difficulty in this code? No, sir. Okay, anyone? How many participants are there? 49. Okay, thank you for what. Okay, okay, we will talk on that particular topic later. But up till now, in line number 1 to 9, any difficulty so far, then you can ask, right. So we'll see the description, how we can describe, or explanation, how we can explain that particular program, right. Now in the first line, again same, first line will be the same and last line will be the same. So the first line is that it contains the hash, which means preprocessor, and it includes the stdio.h header file, that standard input output header file having the definition of a input and output functions. Then line number 2, that is the main function, that void is nothing, that means even not zero also, right. So we have to write it, just because that we have to declare the part और execute the part under the main class, उसके लिए हमको उसकी ज़रूरत है. Then line number 3, that contains the opening brackets. Then line number 4 consists of the 4 variables a b c. Line number 4 बहुत ज़्यादा important है, 4 5 6 7. So that a b c is used for storing the values given by user, and sum is used for storing the addition of these three numbers. यानी 3 नंबर दिए हैं तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स, और तीनों को एक करना है हमको, तो उसके लिए एक सेपरेट फोर्थ नंबर का वेरिएबल, राइट. देन line number 5, that displays the message on the output screen for the user, enter the three numbers. Once the user will observe or see that particular message, then user will provide the three numbers. Then line number 6, which is very important and first time it comes in a description part or in the program part, that is the scanf. Scanf is used for accepting the input from the user. Here scanf accepts three integer values from the user, which are stored in a variable, and a variable a b c, ये तीनों variables की जो values user देने वाला है, उसको read करके उसको accept किया जाएगा with the help of scanf, right. So when we are talking about the printf, that is used for a display the message, right, or print the message. Where we talk about the scanf, it will read the data, either it is entered by the user or it is accessed by the system also. We have to read that particular data. जैसे ASCII value of a capital A. Anyone? Anyone remember ASCII value of a capital A? 60, 65. 65 or 97? हाँ, small एक 65. 65. स्मॉल है कि 97 है? स्मॉल ए की 97 है, एग्जैक्ट. दो में से एक ही आप याद ध्यान में रखो तो दूसरी ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेगी. सो कैपिटल ए इज हैविंग अ वैल्यू 65. अब ये किसने डिसाइड किया 65 है? वो अमेरिकन स्टैंडर्ड ब्ला 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 जो भी है, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया, करेक्ट, 65. तो ये वैल्यू यूज़र देने वाला है क्या? नहीं.
But if you want to find out that particular value of a ASCII value, then that value will be read by the scanf from the system. अगर हम ए बी सी जो हमारा करंट प्रोग्राम चालू है इसमें ए बी सी की जो वैल्यूज है वो अगर हम देते हैं, यूजर देता है, so that will be read by the again scanf which is externally provided. It means that the internal values, if you want to fetch, scanf is used for reading the purpose, reading the values or the characters or the data, and in the case of user will provide the data or values or anything that will be the input, so that can also be read by the scanf. So the main purpose of a scanf is clear, that to read the data whether it is provided by the system or the user, and printf to display the data or message, right? Is it clear in between the scanf and printf? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, then line number 7, that addition of a three numbers is carried out which are available in variable a b c and result will be stored in the variable sum. ठीक है, इट जस्ट लाइक दैट, तीन तीन पॉट्स है, तीन पॉट में कुछ मटेरियल आपने रखा है और वो फोर्थ पॉट में आप सभी उसको मिक्स कर रहे हो, ठीक है, इट जस्ट लाइक दैट एडिंग, राइट? देन line number 8, that displays the message on the output screen, backslash n. Backslash n stands for a new line. नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, न्यू लाइन पे जाने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस जो हमने कल देखे थे, दैट एस्केप सीक्वेंस और बैकस्लैश कैरेक्टर्स दैट वी आर यूज्ड. Addition of three numbers equal to value. Value means access specifier, that is a percent %d. Why it is there is a percent %d? Because we declare integer डेटा टाइप ऑफ अ सम. सम का जो डेटा टाइप है वो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, दैट्स व्हाई वी यूज द परसेंट डी. Where the backslash n is the escape sequence for a new line which transfer the control to the next line, right? Then last line, that it contains the closing brackets or braces of the main function. Once the execution of the main function ends, then the execution of the program is also ends. यानी यहाँ पे मेन फंक्शन जब भी खत्म होगा वहीं पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है? इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इवन इफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Procedure oriented programming language. Whereas if you're talking about the C++ or the Java, which are the advanced version of a C, these are the object oriented programming languages where we can use the objects, right? We have to create the objects and we have to use it. But in case of a C, there is no concept of a object, there is only the structured way, and that we have to follow, right? So this is about the description or describe the program. Maybe ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि write a program for addition of three numbers. In that case we have to just write down the program and their output. तो यहाँ पे जो वैल्यूज ली है 159, यू कैन चेंज इट, 10 50 90 ले सकते हो, कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, बट इट शुड बी इंटीजर टाइप वैल्यू. 10.5 15.8 90.6 ये नहीं लेना है, ठीक है? We should not take any of the non-integer value. We should have to take only the integer value, right? Then next, that if the question is write and describe, then we have to describe line by line, right? लाइन बाय लाइन आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, और अगर सीधे सीधे आपको बोला कि राइट अ प्रोग्राम ओनली, देन यू जस्ट हैव टू राइट द प्रोग्राम विद द आउटपुट. क्लियर? Then moving towards the next program, that is interest calculation. Okay, so before that we will see the execution. ये कल हमने एक देखा था प्रोग्राम, इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे. चूज द लैंग्वेज. ओके, मे बी because of network it gets
stuck. Maybe it gets stuck. Is screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये जो ऊपर का पूरा पोर्शन है, वेलकम टू जीडीपी, दिस इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. There is no need of it, right? You can directly start with the coding. अरे यार, ये देख. Okay. Now it shows the message that enter the three numbers. So we will enter 10, 10 space 20, 20, right? 10, 20, 30. So your answer is addition of three numbers, that is a 6, 0, 16, right? So we will just give the three numbers with the backslash and we will get the output on the next line. So we will remove it, right? Then what changes that we can do? We can use our integer first a variable as an a float number without declaring. यहाँ पे मैंने इसको float कर दिया. And we will see that whether it will accept or not. It shows the warning. %f expects argument of a type float, but argument 2 has a type of integer. जिसको मैंने float declare किया है, so that number is of a integer data type. But what happened? Access specifier जो मैंने use किया है, so that will be the %f. So we will again give the numbers 10 space 20 space 30. Now what is the answer? Is it correct? Is it correct answer? No, sir. No. No, No, sir. certainly not. No, sir. So just because of a single change, एक छोटा सा चेंज कर दिया तो उसने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी, पूरा आउटपुट बदल गया. ठीक है, जस्ट ये आप अप्लाई कर सकते हो शेयर मार्केट में. शेयर सर मार्केट. मगर आप हाँ, आउटपुट बदला कैसे? क्या क्या? आउटपुट बदला कैसे मगर? ये गार्बेज वैल्यू दिया, आउटपुट नहीं है वो. फिर से अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर से वो कुछ ना कुछ अलग ही देगा. लेट मी शो यू अगेन. इट्स अ गार्बेज वैल्यू, complete garbage value 10926162242. Okay, compile it again and then warning. सर खाली आपण तर पण फॉर्म्युला बरोबर लिहिला तरी तसं होतं मी ते सांगतो का ना ते? तुम्हाला. 10 space 20 space 30. सेम वैल्यू है 10926162242. सेम वैल्यू आहे की डिफरंट आहे? याच्या आधी हीच होती ना. Yes, sir. हाँ, so the case is when you change the access specifier, you are giving the access specifier as a 10. ठीक है, पहला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं. ठीक है, जो है इंटीजर वैल्यू. करेक्ट. एंड वी स्पेसिफाई इट शुड बी द फ्लोट. स्कैनएफ क्या चाहता है, क्या रीड करना चाहता है, फ्लोट वैल्यू, क्योंकि मैंने वहां पे फ्लोट लिखा हुआ है. ठीक है, सो रैंडमली एक वैल्यू लेके उसने आपको शो कर दिया, गार्बेज वैल्यू, राइट. बट एक्चुअली ए की जो वैल्यू है वो ले ही नहीं रहा है. ठीक है, अगर आपको उसको चेक करना है देन वी कैन चेक इट. printf
वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d, ठीक है, डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा, यहाँ पे ए, यानी यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो हम रीड कर सकते हैं यहाँ से स्कैनएप से. वंस दैट वैल्यू इज रीडेड अगेन दैट सेम वैल्यू वी कैन प्रिंट. अब हम चेक करेंगे उसने क्या वैल्यू रीड की और वो प्रिंट क्या कर रहा है, ठीक है. सो देर इज अगेन वार्निंग, वो तो %f के वजह से वो वार्निंग कांस्टेंट ही रहेगी. देन वी विल गिव द सेम इनपुट 10 20 30. एंटर. वैल्यू ऑफ ए इज, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक लाइन में आउटपुट आ गया, करेक्ट. यहाँ पे बैकस्लैश n हमने दिया नहीं था. बैकस्लैश n हम अगर देते हैं देन रन करते हैं तो वो एक लाइन में नहीं दिखेगा. n stop, then n, then run, then we have to execute it. 10 space 20 space 30, enter. The value of a is 10926161192. we have given the value 10 और उसने 10 की जगह पे क्या लिया, कुछ अलग ही वैल्यू ले ली. बाद में आई गेस 20 एंड 30 जो है वो भी अलग ही ली है उसने, ठीक है. सो व्हाई दिस हैपेंस, whether your formula is correct, whether your printf statement is correct, there is no error. एरर भी नहीं है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, बट देर इज अ मिसमैच ऑफ अ डेटा टाइप. ये %f यूज होता है फ्लोट के लिए और %d होता है यूज इंटीजर के लिए, राइट. सो जैसे हमने इम्पोर्टेंस ऑफ सी में देखा था या फिर फीचर्स ऑफ सी में देखा था हमने कि सी लैंग्वेज इज हैविंग अ रिच डेटा टाइप. अब ये रिच डेटा टाइप का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का जो डेटा जनरेट होता है डे टू डे लाइफ में, हम जो भी डेटा फाइल्स एक्सेस करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार का डेटा आ सकता है. इन ऑर्डर टू हैंडल दैट डेटा द सी लैंग्वेज इज हैविंग अ डिफरेंट डेटा टाइप्स. उसको हैंडल करने के लिए सी के पास अलग अलग टूल्स है, उसको हम बोल सकते हैं डेटा टाइप्स. दैट्स वाई दे से इट इज़ हैविंग अ रीच इन डेटा टाइप्स. बहुत सारे टूल्स हैं, मिनिमम नहीं है, यानी 5-6 वेरिएबल डेटा टाइप्स है और उससे आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे उन्होंने एक्सेस स्पेसिफायर की वजह से एरर दे दी, एरर नहीं दी, आपका जो आउटपुट है वो गलत दे दिया, ठीक है. अब अगर हम सम को फ्लोट डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट डिक्लेयर करते हैं सम को, और इंटीजर ए बी सी एज इट इज है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आउटपुट, यहाँ पे तो फिलहाल एरर है, बट आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा, एनीवन? एनीवन? Sir, it will again give a warning. It will again give a warning. Anything Yes, else? sir. Anything else, anyone? यहाँ पे तो उन्होंने सीधे सीधे क्या दिया है, एरर दिया है, ठीक है. वाई? बिकॉज
In case of a printf statement, we use the %d. Instead of that, we have to use the %f. ठीक है, अब अगर इसको रन करते हैं तो फिर से वो बोलता है कि देर इज अ एरर, expected identifiers or float then some undeclared first use in this function. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सम हम यूज कर रहे हैं ABC, तो ABC का जो डेटा बनेगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्मेट इंटीजर, और उसको हम स्टोर किस में करना चाहते हैं, फ्लोट में. ठीक है, सो वाइस वर्सा इज पॉसिबल. अगर आपने फ्लोट नंबर दिया है और इंटीजर में स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, तो वो पॉसिबल है, क्योंकि हर एक इंटीजर नंबर इज ट्रीटेड एज, इफ यू कंसीडर डबल स्लैश, it is used, double slash is used for a comment, right, for a single line. Then 10.00, okay, so 10.00 it is an integer number, but we represent that number in the float format. But when you are talking about 10.20, it is not at all equal to the 10. 10.00, 10.20 ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है 10.00 से. ठीक है, तो ये इंटीजर नंबर है, ये फ्लोट नंबर है. ठीक है, तो अगर आप फ्लोट नंबर की एडिशन इंटीजर नंबर में सेव करते हो, सम एज ए इंटीजर और नंबर फ्लोट है, ठीक है, मे बी वो हो सकता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो सिंपली इफ यू वांट टू use these two data types, float, integer and double, so use the variables which will be declared same as that of the sum variable or multiply variable or whatever the we want to perform. एडिशन करनी है या फिर सब्सट्रैक्शन करनी है या फिर डिवीजन करना है, उसके लिए जो भी आप वेरिएबल लेने वाले हैं उसका भी डेटा टाइप अगर सेम रखते हो तो आपको कोई भी वार्निंग भी नहीं मिलेगी, ना ही कोई एरर मिलेंगी. ठीक है, सो हियर वी राइट द इंटीजर ABC, देन अगेन इंटीजर ABC. ये भी एक बात थी, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं था. ठीक, नाउ ये एग्जीक्यूट हो गया. ठीक है, यहाँ पे मैंने %f लिया हुआ है और सम का डेटा टाइप इंटीजर है. ठीक है, ये भी एक आउटपुट में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशन रहेगी. वैल्यू ऑफ a क्या गई, वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड आउटपुट इज 0.000. एंटर द थ्री नंबर्स 10, 20, 30, बट आउटपुट क्या मिला, 000. ये क्यों मिला होगा, why we get this output? Voice is not clear, my voice is not clear. Hello, क्लियर आहे सर. ओके ओके Yes. ओके अटकत येत होता. ओके ओके, तेव्हा अटकत येत होतं. ओके अटकत येत होता तो. ओके ओके. So why this output is here? We have given 10, 20, 30, but we get 0.00000. सर तिथे 8 बोला बोला बोला. तिथे ए आहे ना, हां, ते 8 नंबरच्या ह्याच्या. 8 नंबरच्या याच्यात ए, त्याच्यामुळे. हा, पण हे तर आपण फक्त प्रिंट करत आहे की व्हॅल्यू ए युजरनी कोणती दिलेली आहे, आपणच दिली आहे, आपल्याला स्क्रीनवर दिसत आहे, पण ती आपण फक्त चेक करत आहे तीच घेतली का. 10 व्हॅल्यू दिलेली आहे, आपण ती 10च घेतली आहे का, हो 10 घेतली आहे, ठीक आहे. त्याला जर आपण काढायचं असेल तर काढू शकतो, काही हरकत नाही. याला डबल स्लॅश करायचं, कमेंट होऊन जाईल तो. ठीक आहे, इथे इंटीजर होतं आधी, याला आपण रन करू. रन केल्यानंतर 10 स्पेस 20 स्पेस 30, एंटर. Again 0.000. Now I will tell you that why there is a 000, just because of this Sir, %f. हाँ Yes, yes, सर मैं यही बोलने वाला था कि वो अच्छा. %f की जगह पे %d चाहिए. यस यस एग्जैक्टली. तो आप सम को डिक्लेयर कर रहे हो इंटीजर और उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिख रहे हो %f, तो वो सम का डेटा जो रहेगा
10 प्लस 20 प्लस 30 दैट मीन्स इट इज 60, वो उसको नहीं एक्सेस करेगा, वो एक्सेस स्पेसिफायर ने जो बताया है वो एक्सेस करेगा और उसके हिसाब से आंसर आ रहा है 0.0000, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस स्पेसिफायर. नाउ वी विल डिक्लेयर सम एज अ फ्लोट. फ्लोट हम उसको डिक्लेयर करते हैं, देन वी विल रन इट. इसके पहले भी हमने रन किया था उसको, बट वो हुआ नहीं था. क्यों नहीं हुआ था? सेमीकोलन भूल गया था मैं. इंटीजर ए बी सी के बाद कॉमा था, सेमीकोलन नहीं था. यहाँ पे ये जो फोर्थ लाइन है यहाँ पे सेमीकोलन नहीं था, कॉमा था, इसकी वजह से वो एरर दे रहा था. ठीक है. नाउ वी जस्ट हैव टू एंटर द थ्री नंबर्स 10, 10, 20, 30. एंटर. मैंने नंबर कौन से दिए? इंटीजर वैल्यू. आउटपुट किस में मिला मुझे? फ्लोट में. करेक्ट. So it means that when you give the integer value, you can get the output in float, but in a float format. फॉर्मेट क्या है फ्लोट का? फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसमें, मैंने डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. बट उसके बाद क्या है? 0000. 60 इक्वेलेंट टू द 60.00, दोनों एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. सो आइदर यू हैव टू पुट ओवर हियर सम एज अ इंटीजर or here as a float, right? So we just have to check it that what you require, and as per your requirement you just have to change the data type. That what I am trying to tell you कि अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया है कि ऐसे ऐसे करना है, एडिशन करनी है, यहाँ पे सिर्फ हम एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन साइन को चेंज कर दो, मल्टीप्लिकेशन लिख दो, a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे एडिशन के जगह पे मल्टीप्लाई, राइट. यहाँ पे सम के जगह पे MUL आ जाएगा, यहाँ पे भी MUL और यहाँ पे भी MUL, राइट. देन रन. एंटर द थ्री नंबर्स 10, 20, 30. इज इट करेक्ट? सर सर वहां पे ऊपर में फ्लोट मतलब जो प्रोग्राम है, फ्लोट एमयूएल की जगह पे वहां पे आईएनटी एमयूएल नहीं आएगा क्या? हाँ, लिख सकते ना, मैंने वो इसके पहले लिखा था. दैट्स वाई वी कैन कीप इट एज INT. हियर वी कैन से एज a %d and then we will execute. We will see the same output, just fractional part is absent if you writing the ओके integer. Integer में fractional part आता ही नहीं है. 10, 20 and then 30. 6000. ओके ओके, Right. थैंक यू सर. Yes. So with the help of a small concept, that addition of three numbers, we can implement multiplication of three numbers. Even if we can do the subtraction of two numbers, not the three numbers, and division of two numbers, right? अगर आपको डिवीजन ऑफ थ्री नंबर्स करना है तो पहले दो नंबर का डिवीजन करना पड़ेगा एंड देन तीसरे नंबर के साथ उसको ऑपरेट करना पड़ेगा. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की तरह वो ऑपरेट नहीं होता है, दैट वी नो ऑलरेडी, राइट. सो इफ यू वांट टू डू द सच काइंड ऑफ programs, we can do it. So I will suggest that do the maximum changes in the program and try to find out the maximum error, and if you got the error, just post that error on your CP discussion group. Okay. ऐसे बहुत सारी errors के साथ जब आप deal करते हो, then and then we came to know that how we learn that particular programming language. क्योंकि errors पता होना सर जब बहुत ज़्यादा. हाँ, yes. सर जब मोबाइल फोन में हम लोग जीडीबी कंपाइलर यूज करेंगे तब उसमें ये प्रोग्राम प्रिंट कैसे करेंगे?
मीन्स क्योंकि उसमें तो वो पहला वाला प्रोग्राम है ना, जीडीपी में। नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा आपका। सर आपने यहाँ से पेस्ट करके वहां पे यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट किया हो जीडीपी में, वो ओके वाले स्क्रीन पे ये वाला प्रोग्राम। ओके। तो वो वाला प्रोग्राम जीडीपी में फोन में तो नहीं आएगा ना, तो ये एंटर कैसे करेंगे उसमें? नहीं, आपको कुछ नहीं, ये मैंने समय बचाने के लिए इसको पेस्ट किया, अदरवाइज आई कैन राइट इट ओके ओके। डायरेक्टली। मैं उसको लिख सकता हूँ ना मोबाइल में। मोबाइल में अगर मैं ऑनलाइन जीडीपी ओपन करूँ गूगल क्रोम में, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। ऑनलाइन जीडीपी का एक ऐप भी आता है, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दैट ऐप वी कैन ऑल्सो टाइप दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये मैं इसका एक अलग से एक डेमो देने वाला हूँ, बट अभी जस्ट सेशनल के जो कुछ कंटेंट बचे हुए वो हमें कवर करने इसलिए। बट आई विल गिव यू द डेमो विच ऐप यू कैन प्रेफर, टिल दैट यू कैन यूज एनी ऐप, ठीक है? मैं स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा कोई एक ऐप यूज़ करो आप, मल्टीपल ऐप्स बताऊंगा, दो तीन अलग अलग प्रकार के, तो उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। टिल दैट यू कैन यूज़ द ऑनलाइन GDB.com, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ऑनलाइन, ठीक है, बट ये फ्रिक्वेंटली मैं यूज़ करता था एंड एट द टाइम ऑफ माई मास्टर्स, ME के टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अभी अवेलेबल हैं, राइट? सो यू डोंट हैव टू डू द कॉपी पेस्ट, राइट? अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट किया मैंने, बट यू डोंट हैव टू डू द कॉपी पेस्ट, बिकॉज व्हेन यू टाइप द प्रोग्राम देयर आर लॉट ऑफ एरर्स। कभी हम यहाँ पे डॉट जो है ये मिस कर देते हैं, कभी एक कॉमा मिस कर देते हैं, कभी सेमीकोलन मिस कर देते हैं, तो उसकी एरर्स आती है। और एरर के साथ जितना ज़्यादा डील करोगे उतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग सीखोगे। मेक श्योर दैट किसी का अगर बोलना है कि मेरे प्रोग्राम में, यानी मेरे नहीं, किसी के भी प्रोग्राम में एरर ही नहीं आनी चाहिए, इट शुड नॉट लाइक, इट शुड नॉट, ये होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि एरर आनी ही चाहिए। अगर एरर आती है देन यू हैव टू फाइंड आउट इट, देन यू हैव टू चेक इट, देन करेक्ट इट एंड देन एग्जीक्यूट इट। ये जब तक कि आप नहीं करते हो तब तक कि आप वो प्रोग्रामिंग इन डेप्थ नहीं सीख पाते हो, राइट? व्हेन विल अपीयर फॉर एनी कंपटीशन, तो बहुत से कंपटीशन में डायरेक्ट आपको एरर दी रहती है, ये एरर है, इसको सॉल्व करके बताओ। ऐसा नहीं दिया रहता है कि आपको ये प्रोग्राम है, ये टाइटल है प्रोग्राम का, जस्ट लाइक वी हैव अ टाइटल, राइट अ प्रोग्राम फॉर अ एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, ऐसा नहीं दिया रहता है। वो एरर देते हैं और इस एरर को आप हैंडल करके बताओ या फिर सॉल्व करके बताओ, ठीक है? सो फॉर दैट वी शुड नो दैट हाउ टू हैंडल विद द एरर्स और हाउ टू रिमूव द एरर्स, राइट? अप टिल नाउ एनी डिफिकल्टी एनीवन? नो सर। ओके, गर्ल साइड एनीवन? सर हाँ यस सर। सर हाँ यस। सर आपण पण खाली जो फॉर्म्युला लिहिला तो बरोबर होता, मग कसं काय झालं सर ते एरर तिथं? आपण फॉर्म्युला बरोबर लिहिला, करेक्ट, पण त्या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पोचल्या का? जे आन्सर चुकीचे येऊन राहिले होते, 109 समथिंग समथिंग जे काही येऊन राहिलं होतं, तिथपर्यंत त्या व्हॅल्यूच पोहोचल्या नाही. त्या फॉर्म्युल्यापर्यंत काहीतरी भलत्याच व्हॅल्यू पोहोचल्या आणि चुकीच्या व्हॅल्यू पोहोचल्यामुळे आन्सर चुकीचंच येणार. त्याकरताच मी स्कॅनएफ चे जे स्टेटमेंट आहे त्याच्यानंतर पुन्हा प्रिंटएफ लिहिलं होतं आणि व्हॅल्यू ऑफ ए प्रिंट केली होती. म्हणजे मला हे चेक करायचं होतं कि यूज़रला मैसेज दिला, एंटर द 3 नंबर्स, और वो मैसेज देने के बाद हमने रीड किया स्कैन ऐप के थ्रू, और रीड करने के बाद हम ये चेक करना चाहते थे कि एक्चुअल में क्या रीड किया है, एक्चुअल में क्या रीड किया है, दैट वी हाउ टू चेक ए की वैल्यू क्या रीड की है। तो ए की वैल्यू अगर उसने गलत रीड की है तो बी और सी उसमें ऐड करके उसकी वैल्यू जो आएगी सम में, दैट विल बी द अगेन रॉन्ग आंसर। सो फॉर्मूला इफ इट इज राइट but the values which we have given that is wrong, in that case we will get the wrong answer, right? Search. थँक्यू सर. Okay, then moving towards the next program, that is the interest calculation. Now it is same, 3 numbers and their addition. यहाँ पे 3 numbers and their multiplication, and there is an additional part that is a division also. Like
So in case of first two lines that are common, hash include stdio.h, header file को include किया, main class को आपने लिख लिया as a void main, because we don't have to return anything, so that's why we put as a void which is empty. Then integer p and integer t. P is a principal amount, t is the time period, either it is in a month or a year, right? Then float, that is r is a rate of interest, and there is a one interest, that is a simple interest. इसको आप क्या बोल सकते हैं, एस आई भी बोल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. Now these two variables, four variables having a two data types, correct? ऐसा कभी होता है क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है बैंक में? ऐसा होता है कभी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट है? नो सर. नो, इट विल वेरी, वो कंटिन्यूसली वेरी होता है. और वो वेरी ऐसे होता है क्या, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस वेरी होती है, 80 रुपए की है तो डायरेक्ट 85 होती है, 85 की 90, 90 की 100, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो पॉइंट में वेरी होता है. पॉइंट्स में होता है सर. नो नो 7.5, 7.9, 7 पॉइंट हो गया कि इसके बाद 8 का, फिर 8.2, 8.5, 9, देन 9 पॉइंट, देन 10 पॉइंट, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ही आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, करेक्ट? तो वहाँ पे उन्होंने वही बताया है कि दैट इंटीजर प्रिंसिपल अमाउंट कभी ये हो सकती है कि आप किसी ने 15,575 रुपए का लोन लिया, कोई ऐसा लेगा क्या 15,575.25 नो ऐसा कोई लोन लेता है क्या? नहीं. नो नो सर. लेना भी है उसको तो वो No, कंप्लीट sir. लेना है, लेंगे ना. ठीक है, 15,000 है तो भाई ठीक है, 500 छोड़ दो, 16,000 दे दो. ठीक है, 17,000 दे दो, चलो ठीक है, राउंड फिगर 20,000. सो द प्रिंसिपल अमाउंट मोस्टली क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू रहती है. ठीक है, लोन कभी फ्रैक्शनल में नहीं रहता. बट आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, आपके अकाउंट में समझो 10,000 रुपये है, तो उस 10,000 के ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको. ठीक है, इंटरेस्ट मीन्स आपने 10,000 रुपये बैंक में रखे हैं अपने आपके पासबुक में, तो कुछ पैसे मिलते हैं आपको, 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये. ठीक है, तो वो रह सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज में. ठीक है, इंटरेस्ट रहता है वो, कुछ समय के लिए आपने रखे हो. फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ अकाउंट में पैसे रखे हैं और उसके ऊपर जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, जो भी इंटरेस्ट मिला है उसके बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, या फिर जब आप बिल पेमेंट करते हो, मोबाइल का बिल है या फिर लैंडलाइन का बिल है, कोई भी बिल है, तो उसमें रह सकता है फ्लोटिंग वैल्यू. ठीक है, आपका बिल 505 रुपये 5 पैसे ऐसा आ सकता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1 पैसे कॉल रेट से सारे 1 पैसा पर सेकंड से काम चलता है. डेटा पैक भी वैसे ही रहता है, वो इन टर्म्स ऑफ केबीज में दिखाता है, आपका इतना केबी बचा हुआ है, इतना एमबी बचा हुआ है, इतना जीबी बचा हुआ है, राइट? सो वेन एवर देर इज अ इंटरेस्ट, we just have to use the float as a data type. But when we talking about the principal amount and the term कभी ऐसी हो सकती है क्या, 1.5 दिन के लिए, 25.5 डेज के लिए, या फिर 60.25, 60 डेज 25. अब ये आगे के 25 क्या है, ये तो डेज भी नहीं है, आवर्स होंगे. 60 डेज एंड 25 आवर्स, यानी वो हो जाएगा 61 डे 1 आवर. ऐसा कभी टाइम भी नहीं रहता है. टाइम भी एब्सोल्युटली ईयर्स में रहेगा या फिर मंथ्स में रहेगा, 2 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, राइट? सो that principal amount and the time both are considered as a integer, whereas the r, that is rate of interest, and the calculated part as a simple interest, that will be in a float. Now what data we require from the user, we require the principal amount. So we write the printf statement, enter principal amount, rate of interest and the time period in the year. ये सारी चीजें हमने उनसे ले ली, किससे, यूजर से. नाउ प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑफ द डेटा टाइप इंटीजर, परसेंट डी इज यूज. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑफ द डेटा टाइप float, we have to use the percent f.
then time period, which is a t, that we have to use %d just because that it is declared as an integer. Then comma, ampersand p, ampersand r, ampersand t, address of p, address of r, address of t, close, then semicolon. ये समझ में आया scanf? यस सर। दो इंटीजर टाइप के डेटा है इसलिए %d 2 बार, और एक फ्लोट टाइप का डेटा है इसलिए %f 1 बार. देन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है p इंटू आर इंटू टी. PNR बोलते हैं हम उसको, यहाँ पे उन्होंने अलग वेरिएबल्स यूज किए. p इंटू आर इंटू टी ब्रैकेट, ये तीनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके एक वैल्यू बनेगी, एंड दैट वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय द 100, राइट? So we will get the actual interest, right? Then printf statement that simple interest is equals to, अब simple interest का जो वेरिएबल हमने लिखा हुआ है interest, उसका डेटा टाइप क्या है? इंटरेस्ट का डेटा टाइप एनीवन? सर फ्लोट। फ्लोट. इंटरेस्ट का डेटा टाइप है फ्लोट, और फ्लोट को फ्लोट हम है सर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं? %f. सो दैट्स वाई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू %f कॉमा डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा इंटरेस्ट, राइट? सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट. यहाँ पे उन्होंने आउटपुट पे दिखाया है कि 100 एज अ प्रिंसिपल अमाउंट डाली हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.0 दिया है, जनरली 5.0 नहीं रहता है बट दे दिया उन्होंने 5.0, एंड टाइम पीरियड दिया है 3 ईयर्स. तो उसको जब वो मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, एंड वी विल गेट द 15.000000, दैट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, राइट? एनी डिफिकल्टी इन दैट पार्ट? सर हाँ, यस. सर तुम्ही मागे म्हटलं होतं की त्या प्रोग्राम मध्ये जर समजा आपण काड्या केल्या तरच आपल्याला ते असं कळते, तर जर समजा आपण प्रिंटएफ मध्ये %f च्या जागेवर %d ठेवलं तर मग काय होईल? %f च्या जागेवर %d ठेवलं प्रिंटएफ मध्ये, ओके, तर तो फक्त 15 रिप्रेझेंट करेल. पण आन्सर समजा फ्लोट मध्ये असेल तर सिंपल इंटरेस्टचं? हा ना, आंसर फ्लोट मध्ये आहे आणि तुम्ही त्याला एक्सेस स्पेसिफायर देता, हम उसको एक्सेस स्पेसिफायर दे रहे हैं इंटीजर का, तो इंटीजर के हिसाब से वर्क करेगा. वो सिर्फ 15 को लेगा, डेसिमल प्लेसेस को छोड़ देगा. ओके, करेक्ट ना? क्योंकि उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो तो इंटीजर के रिलेटेड है, और इंटीजर क्या बोलता है कि डेसिमल प्लेस जो डॉट है उसके पहले का जो भी है वो कलेक्ट कर लो. और फ्लोट क्या बोलता है कि डेसिमल प्लेस के, यानी जो पॉइंट है, पॉइंट के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ का डेटा आपको कलेक्ट करना है. तो अगर आपका डेटा फ्लोट में भी है सिंपल इंटरेस्ट, और उसको आप एज अ %d यूज कर रहे हो %f की जगह पे, तो वो %d के हिसाब से सिर्फ 15 लेने का, बाकी कुछ नहीं लेगा. 0.00 जो है वो नहीं लेगा. सर रेट की जगह पे भी अगर हमने %d लगा दिया तो वो रेट को भी इंटीजर में ही लेगा क्या? हाँ, रह सकता है इंटीजर रेट. अब जहाँ पे इन्होंने दिया ही ना 100 दिया है, बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.0. 5.0 क्या है? 5 ही तो है, 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है ना. तो नहीं, हमारे पास रेट की वैल्यू फ्लोट में है और हमने %d लगा दिया तो इसमें भी वो वही रहेगा ना, बस इंटीजर वैल्यू वो हाँ, नंबर तो की. उसमें आंसर जो आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से कुछ तो कैलकुलेशन बढ़ेंगे ना मैथमेटिक्स में. यस सर. हाँ, मैथमेटिक्स के रिलेटेड अगर हम देखते हैं, जैसे मुझे सीईटी में अगर 80% है, 80 परसेंटाइल है, और किसी को 80.29 है, तो नंबर किसका लगेगा? 80.29 वाले का नंबर लगेगा ना, 80 वाले का थोड़ी ना लगेगा. और मुझे 80 पॉइंट समथिंग अगर है, यस सर. 59 वगैरह है, और मैंने लिखे ही नहीं, 80.59 नहीं लिखे मैंने, सिर्फ 80 लिख दिए, तो 29 वाला जो है वो उसका लग जाएगा. मेरे तो 59 है, 80.59, फिर भी मेरा नहीं लगा क्योंकि मैंने गलत लिखा. तो सेम यहाँ पे वही होगा कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू अगर लेता हूँ, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट जो लगेगा वो कम हो जाएगा, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं चेंज होगा, थोड़ा कम हो जाएगा. बट ये मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है तो थोड़ा उसमें आ सकता है, 19-20 हो सकता है उसमें.
तो अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट है, जैसे 5.9 है तो इट इज ऑलमोस्ट 6 और आप 5 लिख रहे हो, यानी 5 दे रहे हो एज अ वैल्यू, परसेंट डी अगर लिख देते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू, तो वो तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये हमारी वैल्यूज़ बहुत छोटी है। ये जो करोड़ रुपए के लोन लेके भाग जाते हैं बड़े बड़े लोग, तो उस केस में तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, राइट? येस सर, थँक्यू सर. ओके देन, सो द ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट विल स्टार्ट दैट इज अ सब रूटीन। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट इसका यूज जो है वो डिपेंड करेगा और वेरी करेगा एज पर द प्रोग्रामर और एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट? Subroutine, that is nothing but the user defined function. When we are talking about the printf and scanf, these are the system defined or the C के जो है, that the particular functions are a inbuilt function of a C. But if you want some another features, some more features, in that case we have to use the user defined functions. Now what exactly the user defined function? If the length of the program is too big, then it is very difficult for a programmer to handle it. The larger program may contain a more errors or the syntactical error or logical error. It is very difficult to locate and correct those the errors. Therefore, such a program should be divided into the small parts. This small part of the program is defined under the function which is known as a user defined functions or the subroutines. That means when we have a large amount of a data in the program, सो उसमें अगर एरर आ गई तो हमें एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डू, वी हैव टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू द यूजर डिफाइंड फंक्शंस दैट आर व्हाट, द फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट पर्टिकुलर टास्क। एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करना है, जैसे टू फाइंड आउट द स्क्वेयर, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और द फंक्शन, तो ये इसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो क्यूब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ऑलरेडी math.h में फंक्शंस अवेलेबल है, बट इस प्रकार से आप कुछ फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो सो दैट कैलकुलेट ओनली दैट वे, करेक्ट, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन है, ये कैसे वर्क करेंगे ये हम उसको डिफाइन करेंगे, उसकी जो वैल्यूज रेंज रहती है दैट वी विल गिव इट, तो वो तो कंप्यूटर में नहीं रहेंगी फिक्स, तो उसको वैल्यूज और उसकी रेंज जो हमको देना है, सो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो हाउ वी कैन डिक्लेयर दैट यूजर डिफाइंड फंक्शन? इट मीन्स specifying function which describes the name of a function, return type and parameter type, यानी तीन चीजें उसमें रहेंगी। पहली चीज रहेगी नेम ऑफ फंक्शन, सेकंड रहेंगी रिटर्न टाइप एंड थर्ड रहेंगी पैरामीटर टाइप। यानी जो void main हम लिखते हैं, और एक हमने एक लिखा था कि void main इन ब्रैकेट void main void, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। एग्जाम्पल में फ्लोट एरिया इंटीजर, फ्लोट क्या है पहला, दैट इज अ डेटा टाइप विच इज कॉल्ड एज अ रिटर्न टाइप। एरिया क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, और पैरामीटर क्या हम पास कर रहे हैं और कौन से टाइप के पैरामीटर पास कर रहे हैं, इंटीजर टाइप के, करेक्ट। So here in area, here in the above example, area is the name of the function which accepts only the one integer parameter and it will return a float value. ये है सिंपल फंक्शन का डिक्लेरेशन। एरिया कैलकुलेट करेगा बट वो रिटर्न क्या वैल्यू करेगा, फ्लोट करेगा, और एक्सेप्ट क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा एज अ 10 इंटीजर एक्सेप्ट कर ली, बट रिटर्न जब करेगा वो 10.00 रिटर्न करेगा एरिया, ठीक है। Then function definition. It consists of a function head and function definition. Function definition describes a logic of a program which is separated from a main program. ये अलग से हम उसको डिफाइन करते हैं, मेन के अंदर उसको सिर्फ कॉल किया जाता है या फिर उसका यूज किया जाता है, बट डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन इज रिटन आउटसाइड ऑफ अ मेन क्लास, और वहाँ से फिर वो एग्जीक्यूट होके आपको आउटपुट देता है। Third is calling the function. Whenever user defined function want to be executed in the program, then we have to call the user defined function. ठीक है, जब भी जरूरत रहेगी तब उसको कॉल किया जाएगा। तो ये थेरोटिकल पार्ट हो गया। अब उसको हम प्रोग्रामेटिकली
प्रोग्राम के थ्रू एक बार देखेंगे दैट राइट अ प्रोग्राम फॉर अ एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग अ सब रूटीन. नाउ इन दैट केस हैश इंक्लूड stdio.h void main ये जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, बट एक नया पार्ट उसमें इंट्रोड्यूस हो गया, फ्लोट एरिया int. एरिया है नेम ऑफ फंक्शन, फ्लोट है रिटर्न डेटा टाइप एंड इंटीजर है पैरामीटर टाइप, और उसको हमने दिया है सेमी कोलन. यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोट एरिया इंटीजर इसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है एज अ फंक्शन डिक्लेरेशन. इसको हम सब रूटीन बोल सकते हैं या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि हमको एरिया कैलकुलेट करेगा. वहाँ पे हमने सेमीकोलन दिया हुआ है. करेक्ट. नेक्स्ट वॉइड मेन और उसके बाद इंटीजर आर. अब यहाँ पे हमने वैल्यू भी डिफाइन कर दी और उसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया, ये भी अलाउड है. इंटीजर आर लिखो या फिर इंटीजर आर इक्वल टू 10. तो 10 यानी क्या हो गया, तो उसकी वैल्यू होगी फिक्स, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट 10. वो चेंज नहीं होगी, कितने भी बार आप उसको एग्जीक्यूट कर लो. बट अगर आर की वैल्यू आप यूज़र से डिमांड करोगे तो वो चेंज हो सकती है, क्योंकि यूज़र कभी 10 देगा, कभी 15, कभी 20, जो उसकी मन मर्जी चाहे वो दे सकता है. बट इन दिस प्रोग्राम आर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 10. देन द एरिया. एरिया आपको फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट में ले सकते हो, इंटीजर में चाहिए तो इंटीजर में ले सकते हो. वी विल टेक द एरिया एज एन अ फ्लोट. देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इनसाइड द मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, बट उस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन stdio.h में नहीं रहेगी. Those function are system defined, their definition lies under the stdio.h header file, but those function are a user defined function, their definition we have to write it down after the main function. राइट, उसके बाहर आपको लिखनी पड़ती है. तो हमने इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया. a इक्वल टू एरिया ब्रैकेट इन ब्रैकेट आर. आर क्या है, तो रेडियस है, तो वो को रिलेट करेगा सेकंड नंबर की जो लाइन है उसके साथ, एरिया इन ब्रैकेट इंटीजर. तो यहाँ पे इंटीजर का जो डेटा टाइप है वो आर का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर हो जाएगा. एंड देन प्रिंट एफ. ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होने के पहले फंक्शन बॉडी को कॉल किया जाएगा फ्लोट एरिया इंटीजर p. अब ये इंटीजर p क्या है, ये एक एडिशनल वेरिएबल लिया है हमने. एम आई ऑडिबल? यस Yes. सर. हाँ, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके यस सर. ओके. सो यहाँ पे हमने फ्लोट को क्या लिया है, फ्लोट एरिया इंटीजर p. यहाँ पे फंक्शन हेड लिया है हमने और एक एडिशनल वेरिएबल p लिया है. उस p का यूज करके हम एक पैरामीटर टाइप पास करेंगे यहाँ पे, और हम कैलकुलेट करेंगे एरिया. ठीक है, क्योंकि एरिया के रिलेटेड जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में डिफाइन नहीं किया हुआ है. दैट्स व्हाई वी विल कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ अ सब रूटीन. राइट. सो द फ्लोट एरिया इंटीजर p ओपनिंग पैरेंथेसिस फ्लोट q. ये जो q वेरिएबल है, दैट q इज यूज्ड एज अ कंटेनर, एज अ सम बोल सकते हैं, या फिर q को हम क्या बोल सकते हैं, एरिया, फाइनल एरिया. तो q इक्वल टू 3.14 इंटू p इंटू p क्या है, दैट p इज नथिंग बट द इंटीजर पैरामीटर. और वो कोरिलेट कहाँ से होगा, आपके फंक्शन कॉल के साथ. ठीक है, तो वो कहाँ से वैल्यू लेगा, r से वैल्यू लेगा. तो p की वैल्यू क्या रहेगी, r, विच इज 10. करेक्ट. सो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 100. तो वैल्यू क्या होगी आपकी, एरिया इक्वल टू 314.0000. और जैसे यहाँ पे आपने फ्लोट सेकंड लाइन पे फ्लोट एरिया इंटीजर लिखा है, तो फ्लोट क्या है, आपका रिटर्न टाइप है, इसलिए हमने नीचे क्या लिखा है, रिटर्न क्यू. क्यू इसलिए लिखा क्योंकि उसका डेटा टाइप फ्लोट है. राइट. सो इन दिस प्रोग्राम we can calculate the area of a circle with the help of a user defined function. डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट डिफाइनिंग अ फंक्शन, बट जब लेंथ ऑफ अ कोड इंक्रीज होता है उस केस में आपको हैंडलिंग करने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, या फिर उसकी यूटिलिटी बहुत अच्छे से
इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप. दैट इज द ओनली रोल ऑफ अ सब रूटीन. ओके, in that program if you have any kind of difficulty you can ask me after the lecture also. यानी लेक्चर होने के बाद भी यानी शाम तक कभी भी अगर आपको कुछ डिफिकल्टी रही तो आप उसमें पूछ सकते हो, राइट. देन the last part, I will take only the 2 minutes. The last part, that is a math function. Now when we are talking about the any mathematical operation which is a standard mathematical operations, addition, multiplication, subtraction, division, वो तो stdr.h header file में है. But apart from that, if you want to perform advanced mathematical operation, in that case we have to use the math.h header file, which is having sqrt, pow, square root, then power, then ceiling, then floor, right. So this kind of functionality or complex mathematical problems if you want to solve, in that case we have to use the math.h. अब ये जो चार्ट है इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है. SQRT स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता है. POW पावर देता है नंबर का, कोई भी नंबर का अगर पावर निकालना है तो. देन फ्लोअर, दिस फंक्शन रिटर्न्स द नियरेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू गिवन टू दिस फंक्शन. नियरेस्ट वैल्यू देता है. जैसे फ्लोअर 3.7 लिखा है तो नियरेस्ट वैल्यू क्या हो गई 3 एब्सोल्यूट वैल्यू. देन राउंड, जो राउंड अप करेगा. राउंड अप जैसे रहता है ना कि आपको अगर 10.5 मार्क्स अगर मिले हैं, ठीक है, या फिर जैसे इंजीनियरिंग की जो पासिंग रहती है तो वो रहती है 40 की, और 39.5 अगर आपको मार्क्स मिले हैं, इट मीन्स दैट यू आर पास बिकॉज वी राउंड अप. 0.5 मिला यानी इसका मतलब हम उसको राउंड अप कर देते हैं. तो यहाँ पे भी 3.7 अगर है तो राउंड अप क्या होगा 4. फ्लोअर अगर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करेगा. राउंड अप अगर है तो आगे की वैल्यू कंसिडर करेगा, राइट. देन सेल, दैट फंक्शन रिटर्न्स द nearest integer value which is greater than or equal to the argument passed to the function. यानी 3.7 है तो वो वर्क करेगा राउंड अप के जैसा सेल. सिमिलरली देन साइन, कोसाइन, टैन, साइन एच, कॉस एच, टैन एच, ये सभी के सभी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं दैट वी ऑलरेडी नो. देयर वैल्यूज वी ऑल्सो नो, 11th-12th में हमने देखी है. all that can be used with the help of math.h function. then exponential है x to the power. then logarithmic भी आप उसको नेचुरल लॉगरिथमिक भी आप यूज कर सकते हो. log 10 भी यूज कर सकते हो. एंड लास्ट वन इज मैक्स ए बी, मीन ए बी, मीन लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर दोनों आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ math.h फंक्शन. ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है. हैश इंक्लूड stdr.h, हैश इंक्लूड